Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and doing your homework daily. So, first of all, you have to subscribe our new channel. Its name is Best English School. Everyone, please subscribe it. This is for your online class, so don't forget. Please like our video and comment it. If you have any question, then comment in box. So let's start. Today we are going with English subject. In English we are learning our unit 3. In this unit, last lecture we read story Nasruddin's M. Today we are going to discuss the question answer of the story. So everyone, please take your textbook with you. Let's start. Number 1 is, what did Nasruddin boast about? Nasruddin boasted about his skill in archery. He used to say that none of the arrow shot by him missed the target. Again, Nasruddin boasted about his skill in archery. He used to say that none of the arrows shot by him missed the target. यानी उसने क्या बड़ा बड़ा बोला था कि उसका जो टारगेट, जो एरो होता है, वो कभी टारगेट को मिस नहीं करता है. नंबर 2, वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. यानी जब नसरुद्दीन का टारगेट मिस हो जाता था तब वो किसी और का नाम क्यों लेता था? सो आंसर इज, नसरुद्दीन टूक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट बिकॉज he didn't want to accept defeat in front of his friends. To save himself from the shame, he took someone else's name each time he missed the target. वो क्या करता था? किसी और का नाम लेता था. क्यों? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और ख़ुद को बचाने के लिए, शैम मीन्स शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो किसी और का नाम ले लेता था. Again, Nasruddin took someone else's name each time he missed the target because he didn't want to accept defeat in front of his friends. To save himself from the shame, he took someone else's name each time he missed the target. Look in the question. You can see हमने जो आंसर लिखा है ना उसको क्वेश्चन में से भी लिया हुआ है. देखो, वाई डिड है, उसके बाद तो नसरुद्दीन, टेक का क्या हो जाएगा? टुक. यहाँ पे डिड था तो टेक का क्या हो जाएगा? टुक. हमें पास्ट पार्टिसिपेंट लिखना है, ठीक है. सो नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम मिस्ड द टारगेट आफ्टर इट बिकॉज. फिर आपको आंसर लिखना है. तो ये फर्स्ट लाइन तो आप इजीली क्वेश्चन में से लिख सकते हो. उसके बाद आंसर क्या है? बिकॉज ही डिडंट want to accept defeat in front of his friends. To save himself from the shame, he took someone else's name each time he missed the target. Now number 3, why did the Nasruddin said it was my aim the third time? Nasruddin said it was my aim the third time because this time the arrow had hit the target. इस टाइम क्या हुआ था? थर्ड टाइम में जो एरो था वो टारगेट को लग गया था. नंबर 4, डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? नो. आपको लगता है कि वो धनुष विद्या में अच्छा था? नहीं. नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी. इंस्टेड ही वॉज गुड एट बी फूलिंग अदर्स. वो किस में अच्छा था? दूसरों को उल्लू बनाने में वो अच्छा था. So answer is no, Nasruddin was not good at archery. Instead, he was good at befooling others. Number 5, what would you have done if your grandmother would have slipped? आप क्या करोगे आपके दादी माँ अगर स्लीप हो जाते हैं? वैसे भी अभी क्या मानसून चल रहा है तो सब जगह पानी होता है, तो हम अगर गिर जाएंगे आपके दादी माँ तो आप क्या करोगे?
So answer is I would have helped her in restoring her physical and mental balance. At the same time, I would have created some humor by beating the floor or strain in order to punish it for making my grandfather fall down. यानी हम क्या करेंगे, उनको फिजिकली और मेंटल बैलेंस हो उस तरह से उनको खड़ा करेंगे. फिर उसके बाद पता है जब छोटा बच्चा कुछ गिर जाता है तो हम बोलते हैं चींटी मर गई, फिर हम ज़मीन को मारने लगते हैं. तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी रिएक्ट करेंगे ताकि हमारी जो दादी माँ है उनको क्या लगे, अच्छा लगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज़मीन को मारेंगे या सीढ़ी को मारेंगे कि तूने मेरे दादी माँ को गिरा दिया, इस तरह से. नंबर 6, shoot the arrow and hit the target by matching the words with their meanings. So let's start. Shouting means informal talk. Amazement, greatly informed. Archery, shooting with a bow and arrow. Defending, to protect from attack. Target, the goal intended to be hit. And last one is triumphantly, happy and proud. Again, CHATTING. Chatting means informal talk. INFORMALTALK. Informal talk. Then amazement. AMAZEMENT. Amazement means greatly informed. Then number 3 is archery. ARCHERY. Archery means shooting with a bow and arrow. Then defending. DEFENDING. Defending means to protect from attack, यानी खुद को बचाना. Then target. TARGET. Target, so the goal intended to be hit. And last one is triumphantly. Its meaning is happy and proud. You have to learn it, so don't forget. स्पेलिंग के साथ अच्छे से लर्न करना. Then replace the underlined word and words with a word from the box and rewrite the sentence. So let's see. Number 1 is in no time she hit the object she aimed at. You can see this question in your textbook. So everyone please take your textbook with you. Again read number 1 is in no time she hit the object she aimed at. So answer is in no time she hit the target. In no time she hit the target. Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin was certainly not a good archer. Then the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. So you can make like this. The teacher remarked. समथिंग का क्या हो जाएगा, remarked. जब हमें टीचर कुछ बताते हैं तो वो remarked हो जाता है. टीचर आपको स्टार्स देते हैं या गुड बोलते हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो सब क्या है, रीमार्क है. सो द टीचर रीमार्क्ड अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग. ही फेल्ट वेरी हैप्पी. जब हमें कुछ भी रीमार्क मिलता है तो हमें खुशी होती है. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस इज द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो इन द पैराग्राफ about him in your write paragraph about him in your notebook. आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है. राहुल गुप्ता के बारे में आपको क्लू दिए हुए हैं बुक में, तो यू कैन सी. लेट्स हम कैसे लिखेंगे. राहुल गुप्ता इज एन इंडियन. राहुल गुप्ता इज एन इंडियन. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्रैक्टिस 8 hours daily. He eats healthy food. He runs kilometers every day. He is a good batsman. महेंद्र सिंह धोनी, हम सबको पता है वो भी एक अच्छा बैट्समैन है. उसने अभी क्या किया है, इंटरनेशनल जो मैच होती है उससे क्या ले लिया है, रिटायरमेंट. सो जस्ट फॉर नोइंग
इंफॉर्मेशन थी छोटी सी. लेट्स कम टू द टॉपिक. राहुल गुप्ता इज एन इंडियन. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्रैक्टिस 8 hours डेली. ही ईट्स हेल्थी फूड. ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे. ही इज़ अ गुड बैट्समैन. वेर एकदम ईजी है, आप एकदम लिख लोगे उसको और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. ओके, डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक. Now number 9, this is a Rajiv's family. They are a healthy family. See what each one to remain healthy. यानी हमें राजीव की फैमिली बताई गई है और वो कैसी फैमिली है, एक हेल्दी फैमिली. सो सी व्हाट ईच वन टू रिमेन हेल्दी, यानी हेल्दी रहने के लिए सभी लोग क्या क्या करते हैं उसकी फैमिली में. तो फादर आयरन पम्पिंग, मदर योगा, सीता रोप स्किपिंग, ग्रैंडपा वॉकिंग, ग्रैंडमा ड्रिंकिंग मिल्क एंड राजीव क्या करता है, जॉगिंग. उसकी मदर योगा करती है, उसकी बहन का नाम होगा सीता, वो क्या करती है, स्किपिंग एंड रोप. रोप स्किपिंग मीन्स जो रस्सी हम कूदते हैं वो. ग्रैंडपा वॉक करने जाते हैं, ग्रैंडमा क्या करती है, दूध पीती है, और राजीव क्या करता है, जॉगिंग करता है. इसी तरह से आपको अपनी फैमिली के बारे में भी लिखना है कि आपकी फैमिली में हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं. मम्मी क्या करती है, फादर क्या करते हैं, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा क्या करते हैं. ओके, यू हैव टू ऑल्सो राइट इट. Now come to the number 10. Use the buts and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. ऊपर जो हमने राजीव के फैमिली में देखा उसका आपको क्या करना है, एंड और बट का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. सो यू कैन सी ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर्स सीता आर वॉकिंग. ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता आर वॉकिंग. देखो ग्रैंडपा चलने के लिए जाते हैं और वो स्किपिंग करती है. स्पीकिंग मीन्स चलना भी होता है ना. देन फादर इज पंपिंग आयरन बट मदर इज डूइंग योगा. वो क्या करते हैं, पंपिंग आयरन मीन्स क्या होता है, कैसे बताऊँ मैं, साइकिलिंग के जैसा ही होता है. और मदर क्या करती है, योगा करते हैं. देन राजीव एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वेकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग. वो सब क्या करते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं. ग्रैंडपा इज वॉकिंग एंड ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क. फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग. राजीव इज जॉगिंग बट हिज सिस्टर सीता इज स्किपिंग अ रोप. तो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. यू कैन मेक अदर सेंटेंस फ्रॉम दिस paragraph. Now come to the number 11. Fill the grid with words given below. You can use one word from the ones steel, bat, ball, 11 for a ball, football, 2 for stadium, ground, racket. Name the game. What do you can see the answer. आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है और उसमें कौन सा गेम कहाँ यूज़ होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, उसमें कौन सी टूल्स हमें यूज करनी पड़ती है, वो सब लिखना है. सो देखो हमने यहाँ पे बनाया है नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विथ, व्हाट यू प्ले इट एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स. सबसे पहले है क्रिकेट. तो क्रिकेट में क्या यूज़ होता है, बॉल एंड बैट. क्या चाहिए, ग्राउंड, और कितने प्लेयर्स होते हैं, 11. आफ्टर इट हॉकी. हॉकी के लिए क्या कहिए, स्टिक एंड बॉल. कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम, और कितने प्लेयर होते हैं, 11. देन टेबल टेनिस. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बॉल एंड रैकेट. कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम, और कितने प्लेयर्स, 2 to 4. देन फुटबॉल. फुटबॉल में फुटबॉल ही चाहिए, ग्राउंड में खेलते हैं और कितने प्लेयर्स होते हैं, 11. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. Now using the information in the grid write a sentence about each game. हमने जो गेम लिखी है उसको आपको क्या करना है, सेंटेंस बना के लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम. हम घर में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते. सो क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल. There are 11 players in this game. Then hockey.
Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and a ball. We play it in a stadium. There are 11 players in this game. Then table tennis. Table tennis is an indoor game. टेबल टेनिस हम घर अंदर भी खेल सकते हैं. वो क्या स्टेडियम के अंदर ही होता है ना, बंद रूम में भी होता है. सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, उसका टेबल. We play it with a ball and a racket. There are 2 to 4 players in this game. या तो 2 प्लेयर होते हैं या 4 प्लेयर्स होते हैं. Then football is an outdoor game. It is played in stadium. We play it with a football. There are 11 players in this game. So this is the sentence of the game. Now number 13. There are following words are used in various sports. List them under the sport that they are used in. So हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. हॉकी में क्या होता है, पेनल्टी होता है, पेनल्टी कॉर्नर होता है एंड गोल होता है. जब भी आपने कभी हॉकी की मैच देखी हो तो देखना पेनल्टी होता है, यानी कोई दूसरी टीम होती है, वो कोई गलती करती है तो सामने वाली को क्या पड़ता है, पेनल्टी मिलती है, वो उसको एक स्कोर करने को ज़्यादा मिलता है. देन पेनल्टी कॉर्नर होता है जहाँ से आप गोल कर सकते हो, और क्या होता है, गोल. क्रिकेट में क्या होता है, गुगली, वो तो हम सबको पता है, हरभजन सिंह सबसे अच्छी गुगली डालते थे. एंड LBW आउट. LBW का फुल फॉर्म आपको फाइंड करना है. ओके, बुक में लिखना LBW का फुल फॉर्म मैं पूछूंगी. देन फुटबॉल. तो फुटबॉल में क्या होता है, गोल होता है, फ्री किक होती है और पेनल्टी होती है. तो ये सब किस में यूज़ होता है, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. हमने उसको अलग कर दिया. नाउ लास्ट वन इज राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट. आपको क्या करना है, पपेट बनाना है. पपेट कैसे बनता है, आप कोई भी कागज़ से रोबोट बना सकते हो या फिर पैरोट, पिकॉक. आपको ये पपेट बनाना है, ये आपका प्रोजेक्ट है. सो एवरीवन हैव टू मेक अ पपेट लाइक रोबोट, पैरोट, बैट्समैन. कुछ भी पपेट में आप बना सकते हो और आपको वो ग्रुप में सेंड करना है. डोंट फॉरगेट, आपको पपेट बनाना है, ये आपका प्रोजेक्ट है. अब उसके 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. सो नंबर 1 इज माई पपेट इज मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक स्टिक्स. इट कैन वॉक, डांस एंड प्ले. फिर आप जो भी पपेट बनाओ उसके 2 सेंटेंस लिखना. So this is the question answer of the story. I hope you understood it. In next lecture we will go with another topic. So write down this all question answer in your notebook and learn it. And please don't do spelling mistake. Okay? You have to learn also, and you have to also fill up in your textbook. आपको टेक्स्ट बुक में जो भी फिलअप हो सकता हो वो टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है और नोटबुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. पपेट बनाना है, डोंट फॉरगेट. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन. बाय, हैव अ नाइस डे.